for waiting for me. Yes. So if you look at this first PPT, yes, there are almost 8 topics. Yes. What are the congruent figures? Similarity. Then we called it Thales theorem BPT. Basic. Yes. We have bisector theorem, midpoint theorem, trapezium area, and right angle triangle. Okay? That is Pythagoras theorem. Yes. Good. First we see what are the main types of figure and why we need to study congruent and similar figures. अगर एक बार ये समझ में आ गया ना, फिर theorems are very very easy और triangles के क्वेश्चन भी easy बनता है. And the biggest question आज हमारा ये रहेगा, हम इसके बेसिक्स के ऊपर जाएंगे. Yes. Then we have second, कल हम करेंगे केस स्टडीज क्वेश्चंस, राइट. और परसों मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हमने पूरी रिवीजन करनी है और परसों आपके लिए कुछ स्पेशल रखेंगे, राइट. सो वी हैव 3 days नाउ. यस. ट्रिग्नोमेट्री के हमने बेसिक सारे कर लिए, जितने सिलेबस में थे वो सारे कर लिए. प्रैक्टिस चलती रहेगी, प्रैक्टिस तो एंडलेस है. मैंने आपको क्लूज दे दिए, ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बनता रहेगा. यस. लेकिन बेसिक्स हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए. कल बेसिक्स कंप्लीट हो गए थे, आज बेसिक्स ट्रायंगल्स के कंप्लीट कर लेंगे. प्रोबेबिलिटी के तो बहुत कम बेसिक्स हैं, बहुत इजी कर सकते हैं, राइट. एक बार बेसिक्स हो जाएंगे ना, तो मुझे परमिशन मिल जाएगा आप सब लोगों के साथ ट्रिक्स करने का, ताकि सब लोग एक लेवल पे आ जाए. किसी का ऐसा ना हो यार ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं हुआ. यस, एग्री विद मी. तो ऑलमोस्ट कितनों को लग रहा है जो हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी पढ़े हैं, आपको काफी अच्छा रिवीजन मिल गया उसका. यस, दैट इज गुड थिंग. यस Guruprasad, I start from very simple, but we come later on some good questions. So let's see congruent figures. In order to be congruent, two figure must be in same size and same shape. Yes, same size, same shape. Can you give me 2 examples of congruent figures? आप अपने माइंड को चेक करो, क्या वो काम कर रहा है? Give any 2 having same shape and same size. Good. Nice. Good. Pentagons. Good. Coin of 5 rupees. Same book. Yes. Hands, plates. Very good. Door, ears. हमारे बॉडी में इतना कुछ है. Our 2 hands do like this. 2 ears. Foot. Yes. Coins, notes. So many things. लेकिन जब सोचने लगे तो शायद कुछ याद नहीं आ रहा. फैन देख रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें ऐसी. यस. आपका इमेज, प्लेइंग कार्ड्स, किसी ने एग्जांपल भी दिया. पेयर ऑफ इयररिंग्स, फुट ऑफ पर्सन, हैंड्स ऑफ वन पर्सन, राइट. सो इट मींस इट इज टोटली कनेक्टेड विद अवर रियल लाइफ. It means it is important. So congruent means exactly same. Now when the shapes are congruent, all the corresponding side and angles are also congruent. If triangle, look at this. Triangle में all 3 sides and all angles are congruent. Look at the animations. Both 2 circles are congruent. Yes, 2 circles are congruent when the radius is same. When the radius is same. Then we have squares. We have more figures, right? Now come to similarity. So one topic gone. Congruent means same. 3 angles are same. Yes. 1 वाला 1 के, 2 का 2 के, 3 का 3 के. Yes. And sides are also equal. Please make good notes, good quality. So write on the first heading congruent figures. और आप अपनी मर्जी से कुछ और एग्जांपल्स उसमें लिख सकते हैं. Yes, you can write more examples on this. Very good, very good. सब लोग लिखो 5-5 एग्जांपल्स लिखो खुद से congruent फिगर की. Good.
Okay, similar figures. Shape is same, but not same size. Can you give examples? Good, Akanksha. Butterflies. Yes, pencils. Very good example, Shri Devi. Pencil is the best example. Equilateral triangles. Yes, gulab jamun, circles, cricket bats, tennis ball, football, two different coins, hands. Fantastic. You all are awesome. While phone, I see lots of examples. Yeah, good, good, good. Yes, phones. Yeah, wow, nice, nice. Yes. So if it is, we talk about triangles. For triangles, we have corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal. Yes, this is very important in triangles. Yes. Okay, I give you one by one few figures. आपने बताना है these two are congruent और similar और अपनी कॉपी पे उसको लिखते जाना, मजा आएगा इसमें. Similar, even you know any two line segments are similar. One, because उनका शेप तो सेम ही है ना, साइज डिफरेंट हो सकता है. So similarity means same shape, size may be different. Yes, any two circles are similar. Good. हवा भरते हैं ना, बैलून का भी ऐसा रहता है. Any two equilateral triangles. Equilateral means yes, because angle same है. जहां angle same है, they are equilateral. Now, it's very interesting. Enlargement, किसी भी चीज को बड़ा कर देते हैं. अरे यार, ये तो मेरी फोटो को ही बड़ा करने वाले हैं. ये तो गलत बात है ना. मेरी फोटो का तो ये फिर मिस यूज कर रहे हैं और राइट यूज कर रहे हैं. एनलार्जमेंट किया हमने. When you have a photograph enlarged, you make a similar photograph. Reduction, अभी छोटा कर दिया. Any two equilateral triangles are congruent. ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल इक्वल है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री. यस, बट साइड्स आर सपोज 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 यूनिट हो सकता है और बड़ा 3 हो सकता है. नाउ रिवीजन, एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर. उनका अगर रेडियस सेम होगा तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. यस, क्लियर. सो एक सर्कल का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एक लाइन सेगमेंट का. अगर उनकी लेंथ सेम होगी तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. अदरवाइज शेप तो सेम ही है. और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती है? सिमिलर. साइड सेम होगी तो वो क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट. ओके, क्विज टाइम. आपको ट्रू और फॉल्स देना है, टी और एफ. यस. नक्षत्रा का क्वेश्चन है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर? नॉट नेसेसरी. हम बनाएंगे कब वो सिमिलर होंगे. गुड. ट्रू और फॉल्स? एनी टू सिमिलर फिगर्स, जैसे अभी मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही बनाई थी, they are but not circle. Yes. Second था, any two congruent figure are similar. Yes. Yes, obviously, big yes. Two polygons are similar if their corresponding sides are proportional. Third is true or false. बहुत सारे बच्चे फॉल्स भी लिख रहे हैं. कोई दो पॉलीगन है, वो सिमिलर हमेशा होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शनल होगी. क्या ट्रायंगल के लिए सिर्फ? नाउ यू कैन स्पीक. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, two polygons are similar if the corresponding sides are proportional as well as angles are equal. That is in the case of triangle only, that either one condition will be satisfied.
Can you give an example of quadrilateral? So pentagon. हम क्वाड्रिलेटर ले सकते हैं और पेंटागन लेना है. सर क्वाड्रिलेटर में दोनों कंडीशंस होने चाहिए. क्वाड्रिलेटर में भी दोनों कंपल्सरी है. यस सर. ओके, आई मेक ए क्वाड्रिलेटर. तो सपोज हमने बना लिया, स्केयर बना लिया लार्ज करके. अच्छा, पर इसमें एंगल सेम हो जाएंगे. सो विल मेक टू पॉलीगन्स आर सिमिलर. इट मीन्स उनका एंगल भी इक्वल होना जरूरी है और साथ में साइड भी प्रोपोर्शनल होनी जरूरी है. यस. ट्रायंगल के लिए सिर्फ एक, कितनों का बल्ब ऑन हुआ? टाइप बल्ब ऑन. ट्रायंगल के लिए क्या जरूरी है? आइदर एंगल्स और साइड्स. यस, प्लीज मेक नोट्स. ट्रायंगल्स के लिए you have Parampreet, I will make more clear now. Yes. So two triangles ABC and DEF are similar. If triangles are similar, तो हम ऐसा भी कह सकते हो सिमिलर हो जाएंगे अगर उनके सिर्फ एंगल सेम है. इफ एंगल्स आर सेम, और अगर अपने पास साइड्स का रेशियो सेम है, ए बी डी ई, ए सी डी एफ, बी सी और ई एफ, दोनों में से एक भी हो गया तो भी चलेगा. यस नो. बट इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटर, सपोज मैंने एक स्क्वायर ले लिया. बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा कि मैंने, ये एक रेक्टेंगल लग रहा है. ओके, आई टेक रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम. दोनों का मैंने सेम ले लिया, साइड्स का लेंथ. इसका 2 2 1 1. सपोज मैंने 2 2 1 1 ले लिया. यस, साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट दीज टू फिगर आर नॉट सिमिलर. सिमिलर बोल सकते हो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को? नहीं. वेरी गुड. नॉट सिमिलर. इनके लिए एंगल भी क्या होना पड़ेगा? सेम. इंटरेस्टिंग. सो ट्रायंगल के लिए दोनों में से एक कंडीशन, बट क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन के लिए दोनों कंडीशन जरूरी होना चाहिए. यस. नेक्स्ट, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल. नहीं, एंगल प्रोपोर्शनल तो होता ही नहीं, वैसे भी एंगल के साथ तो इक्वल लिखते हैं ना. नेक्स्ट, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर. Yes, true. Well done. क्योंकि प्रोपोर्शनल की जगह क्या आना चाहिए? एंगल के साथ क्या आएगा? इक्वल. Yes, next. Two polygons of the same number of sides are similar if corresponding angles are equal. साथ में साइड्स भी क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल. Okay. आपको बताना इनमें से कौन सी फिगर सिमिलर है? ए बी सी डी. इस फोटो को तो, ये तो आधी काटी थी, ये तो आधी कट होगी ना. अब देखो हाफ ही दिख रहा है. ये वाला दिख पूरा रहा है पर नहीं, ये डी लग रहा है. डी में कंप्लीट आ रहा है. गुड. So two triangles are similar if their corresponding angles are equal, corresponding sides are in the same ratio. यहाँ बच्चे ना कुछ कुछ गलती करते हैं. आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, जनरली कुछ बच्चे कर देते हैं. ये ना चैप्टर बहुत इजी है एक्चुअली. इसमें ट्रायंगल कौन सी सिमिलर है? यस, सेट टी शर्ट, एबीसी और DEF. I will write here triangle ABC similar to triangle DEF. इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, corresponding.
मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इज कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग साइल, कोरस्पॉन्डिंग, ये बहुत जरूरी है जानना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए किसके इक्वल होगा? डी के। कोरस्पॉन्डिंग मींस फर्स्ट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के। ये गलती सबसे ज्यादा करते हैं बच्चे। और रेशो भी ए बी, इधर फर्स्ट और सेकंड लिखा है तो इधर भी क्या लिखेंगे? मान लो मैंने इधर लिख दिया थर्ड और फर्स्ट, सी पहले लिख दिया और ए बाद में, तो इधर भी क्या आएगा? जो एक तरफ लिखेंगे वही दूसरी तरफ लिखना है। यस, अगर ई एफ लिख दिया तो बी सी, ऊपर बी सी और बी सी और ई एफ। यस, got it everyone? Yes, sir. If you are super clear with this, type SC in the chat box. This must be super clear. Without using pen, can you give the answer of this question? एंगल ए और डी इक्वल है, बी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। अब ए भी पता है, बी भी पता है, सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री, इट इज 50 डिग्री। गॉट इट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो मैंने यहाँ पे यूज किया। अगर किसी ने पिछली स्लाइड में नहीं सुना उसके लिए, यस वी, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हो यही है, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड। एंगल ए और डी फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड और थर्ड इक्वल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। What is BPT? Basic. Yes. Want to do practical? Yes, sir. Okay. इसको उठाओ। Okay. We will do practical. Yes. आप आओगे? मैं जो बताऊं आप परफॉर्म करो, ठीक है? ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, गुड। अगर इस ट्रायंगल में ये और ये साइड पैरेलल चेक करना, हम चेक कर सकते हैं। These two sides are, क्या कहती है बीपीटी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उनके एंगल्स भी सेम होंगे, उनकी साइड प्रोपोर्शन में रहेंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट? तो अभी ये क्या है? अभी हम इससे दो थ्योरम्स प्रूव कर लेंगे विद इन सेकेंड। जो थ्योरम को प्रूव करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, किसी भी थ्योरम का प्रूफ अगर हमें कंपटीशन एग्जाम के लिए करना है तो बहुत फास्ट कर सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए तो बहुत फास्ट कर सकते हैं। यहां से अगर हम इनकी रेशो लेंगे वो तो सेम आएगा, लेकिन मैं एक और थ्योरम इससे प्रूव करूंगा। पहले वो देखते हैं कितने लोग उसको पकड़ पाते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा है इसको पकड़, और यहाँ पे टिक कर दिया, ये ठीक है। अब इसको उठाओ ग्रीन, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ से शुरू। अब देखो क्या हुआ, ये टू, ये हाफ हो गया। जब मैंने इस ग्रीन का, एक बार फिर से देखो, जब इस ग्रीन का यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, डबल आया, इट मीन दिस इज हाफ, और ये डबल हो गया। यस नो? Yes, sir. एक बार फिर से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने ये वाला रेशो लिया, उठाओ इसको नीचे लगाओ, यहां तक आ गया। अब इसको उठाओ, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, यस, गॉट इट? नीचे वाला डबल आ रहा है। अब इसका मतलब क्या रिजल्ट बनेगा? ये दोनों इक्वल हो गए, ये मिड पॉइंट होगा। दिस शुड बी द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट।
अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इफ दिस टू आर द मिड पॉइंट्स, तो ये जो लाइन होगी ये दोनों पैरेलल होंगी, और ये वाला अगर 5 सेंटीमीटर तो नीचे वाला क्या होगा 10। इस थ्योरम का नाम क्या है? यस, BPT। वो 3 टाइम नहीं आएगा ग्रीन वाला लाइन। देखो ना, आप देख लेते हैं से बराबर है सेम। अगर आप इधर रखोगे तो भी मिड पॉइंट है। देखो उल्टा है नहीं, वो अलग, हम अभी मिड पॉइंट चेक कर रहे हैं। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ कंप्लीट साइड, राइट? तो थ्योरम क्या कहती है? इफ वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू, ओके, अभी हम प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो और भी मजा आएगा। If a line drawn parallel to the one side of triangle intersect other two sides, simple thing is if these two lines are parallel, then the ratio is same। AD का और AE ऊपर लिया, और पर्पल में है BD और AC। या हम ऐसा भी कह सकते हैं ये सब रेशियो सेम ही होने वाला है। गुड, ओके। इसको ऑपोजिट भी है, अगर DE डिवाइड करेगा तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। इफ रेशियो इज सेम देन लाइंस आर पैरेलल, राइट? ओके, नेक्स्ट वन कैसे करेंगे अभी हम? वी नो द टू ट्रायंगल्स। पहले तो मैं आपको रेशियो लिखना सिखाता हूं। आपको ये क्या लिखा हुआ है? AB और DE। अभी अब सिर्फ मेरे को देखना फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF। जो आपको पता है उसको भूलना पड़ेगा, बट यू नो, प्लीज लीव इट, थ्रो इट आउट। जस्ट लिसन टू मी नाउ। जो इधर से रेशियो लोगे वही रेशियो इधर से लेना है। यस, अगर इधर से आपने लिया A और B, तो इधर से क्या लोगे? D और E, बस सेम। अगर इधर से लिया BC, तो इधर से क्या होगा? EF। आप कुछ भी ले सकते हो। दिट इज अ इजी वे टू लुक। ये अगर थॉट प्रोसेस चेंज हो गया ना, नहीं तो नॉर्मली बच्चे फॉर्मूला याद रखते हैं, ABBC समथिंग समथिंग। नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला, जस्ट इधर से फर्स्ट टू इधर। और कैसे पता चलना क्या लेना है? क्वेश्चन में दिया होगा, एवरीथिंग इज इन द क्वेश्चन, राइट? नाउ 2AB इक्वल टू D, हमने AB को AB रखा, DE का वैल्यू पुट कर दिया 2AB। यस नो? BC 8 है, EF हमने निकालना। इफ यू डू बाय दिस, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, यू ऑलवेज गेट करेक्ट आंसर। गुड। सो जिनका भी आंसर गड़बड़ था, कुछ और था, अभी उनका करेक्ट रहेगा। जितनी मर्जी बार रिपीट कर लो। आपको BPT थ्योरम लगाना कैसे? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जो एक तरफ रेशो, भाई दूसरी तरफ से रेशो। ओके, इसको एक बार मेरे साथ बोलना है, ABC DEF। ABC DEF। Now if you take first two from this side, then same you take on from this side, first two, got it? Yes। If you take BC, तो यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? EF। Fantastic. Now what is the value of DE? D का वैल्यू कितना है? 2। 2AB, BC का 8। Now AB cancel with AB, you will get EF is equal to 60. Got it? Next picture, ध्यान से देखना, इन दोनों को मत देखना, ये तो दो ट्रायंगल्स है, सिमिलर नहीं है। आपको इसको देखना है। अभी इतना मजा आने वाला है, मुझे पढ़ा के इतना मजा आ रहा है। देखो कैसे करना है। आपने ऊपर से उठाया AB, क्या उठाया? AB। नीचे से क्या लिया? D। दो रख दिए। Now I change the color। BC, B के बाद क्या रखा? C।
नाउ फंस गए, नीचे तो एफ डी है, अब कैसे रखेंगे? हाउ आई राइट? कैसे लिखे? बीसी और एफडी सेम रहने चाहिए। ई, आप दो ट्रायंगल्स बताओ, देखते हैं किसकी दो ट्रायंगल ठीक रहेंगे। एबीसी किसके सिमिलर रहेगी? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू विच? EDF, यस। कितने लोग एग्री हो इसके लिए? EDF आएगा। ये लिखना आ गया ना, इसलिए स्लो चलो, फिर आप कुछ भी लिख पाओगे। ओके, नाउ चेक ए बी एंड डी। ए बी एंड डी फर्स्ट टू चलेगा? Yes. नाउ बी सी एंड एफ डी, बी सी एंड एफ डी चलेगा? Yes. गॉट इट? एक्चुअली आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, ए बी, डी को लिख सकते हो ईडी, चलेगा? Yes. देन यू राइट बी सी, और एफ डी को क्या लिख सकते हो? यस नो? Yes. अभी एकदम से तो कैसे पता चलेगा ऐसे लिखना? सो यहां पे सेंस लगाना पड़ेगा। अब ये देखो ए बी और ईडी लेंथ है ना, वो तो लिख ही सकते हैं। अभी कौन कौन से एंगल सेम है? ए और डी तो नहीं है, बी के साथ डी, यस, ए के साथ ई, बी के साथ डी और सी के साथ एफ। इंटरेस्टिंग? यस। अनन्या गॉट इट? अनन्या कैसे आइडिया लगाते हो ये लिखना है, मैं देखना चाहता हूं आप इसका आइडिया कैसे लगाते हो ट्रायंगल्स को लिखने का। What is your view on this? By identifying, by identifying the proportions Identify the proportions. Good. on the base of that. On the base of that. लेकिन वो प्रोपोर्शन को बनाने के लिए भी एक अलग चाहिए ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जहां गलती हो सकती है। ओके, वन मोर चांस फॉर यू पीपल। पहले तो ट्रायंगल बताओ कौन सी दो सिमिलर है? डी और क्यू, आर और ई, बट रिमेन, सॉरी ई इधर आएगा एंड आर इधर आएगा। यू आर लेफ्ट विद पी एंड एफ, राइट? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू। ओके, क्या क्या हो सकता है अब वो लिख लो। पहले गलत देख लेते हैं, सही। सेकंड में डीई और पी क्यू गलत हो गया ना? डीई और पी क्यू, डी के साथ क्या आ सकता है? आर क्यू या क्यू आर। गॉट इट? नेक्स्ट एक और चांस, ए बी, एक तरफ एबीसी लिख लो, ए बी के साथ क्या हो सकता है? नाउ अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे लिखना चाहिए। रेडी? ठीक है, अब जिनको मुश्किल लगता है उनके लिए आप एबीसी को दो बार लिख लो। अभी एक सुपर्ब आइडिया देने वाला हूं, दौड़ेगा वो आइडिया। नाउ ए बी किसके है? क्यू आर। सो वंस यू राइट क्यू आर, अनदर यू राइट आर क्यू। दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है, यस नो? गुड। बीसी किसके है? पी आर।
सो BC इज PR। यहाँ पे क्या डालोगे? P। यस नो? यहाँ पे BC किसके इक्वल डालोगे? बनेगा ही नहीं PR, बनेगा? एक में बनेगा, एक में नहीं बनेगा। देखो आपका आंसर आ चुका होगा। अभी आपका आंसर कैसे लिखोगे? A के Q होना चाहिए, B के कॉरेस्पॉन्डिंग R और C के P। सो P के C, Q के A और R के B, ये ऑप्शन। इंटरेस्टिंग। सबसे ज्यादा गलती यही पे होता है, मैक्सिमम गलती लिखने में। जिसको आज ये समझ में आ गया ना, मुझे लगेगा मेरा लेक्चर लगाना भी स्ट्रांग हो गया और वो स्टूडेंट ने कुछ सीख भी लिया। कितना सिंपल आइडिया बता रहा हूं। अब अभी वापिस से समझ लो एक बार, एक चांस है। देखो आपके पास टू ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी लिखना है, मीनिंग कि हम कर क्या रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं, ये उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जिनको मैथ उतना पसंद नहीं है। There are two triangles. Suppose this angle is of 50 degree or 80 degree. This is 80 degree. This is 30. This is 30. 70. 70. A, B, C. P, Q, R. ओके, चूज द कॉमन वर्टेक्स। इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? A, B, C और A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? बस, द ओनली आंसर इज Q। A कितना है? 70 डिग्री का। तो ये कितना है? 70 डिग्री। आर यू गॉट? हमें पता क्या लगता है देख के? उस दिन राहुल सर ने भी बताया था ना, पिक्चर्स को देख के हम गलत अंदाजा लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है। A के कॉरेस्पॉन्डिंग Q, एक तरफ ABC लिख लो, अब B के कॉरेस्पॉन्डिंग, देन C के कॉरेस्पॉन्डिंग। जो पहली बार सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, जिनको पहली बार समझ आ रहा है, उनके लिए हम क्या करते हैं? सिमिलैरिटी का मीनिंग है हमें कोरस्पॉन्डिंग चीजों को फाइंड करना है। ए एंगल किसके इक्वल है? यस। बी किसके इक्वल है? और सी किसके इक्वल है? ये। और साइड्स भी ऐसे चलेंगे। अगर ए बी है तो कौन चलेगा? क्यू आर। बी सी तो ए सी तो अरे गॉट, सुपर क्लियर। इट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी of two triangles when angles are equal and sides are proportional. इस नंबर पे जाके क्या लिखोगे? हाय गवर्नमेंट एग्जाम दोस्त, ऑल इंडिया एग्जाम्स, सीटेट, इसमें फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सीटेट के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, सीटेट का सिलेबस मिलेगा और हमारी VIP कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। इसको ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत कुछ डालता हूँ।